गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good गुड morning. मॉर्निंग सुष्मिता जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर किरण। गुड मॉर्निंग पद्मावती जी, सलोनी जी, स्नेहा। नमस्कार। गुड तो मॉर्निंग सुष्मिता मैम। जैसा कि Good आप सबको morning. मालूम है कि हमारा relationship के ऊपर चल रहा है। तो आज हमारे साथ में सुष्मिता जी है जो हमारे लिए रिलेशनशिप के ऊपर एक बढ़िया सी मेडिटेशन लेके आई है। और पहले हम देखते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। आफ्टर दैट हमारा पावर बुक की जर्नी जो हमने स्टार्ट की हुई है वो हमारी जारी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन। तो वेलकम सुष्मिता मैम, वेलकम। Thank you. So I'll start now. All right. यस। Good morning. Have a wonderful day ahead. All of you take a nice place, find a nice place and sit down. Relax yourself. Know that you're going to heal the most important relationship of your life. Allow your hands to rest gently by your side. अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। Take a deep breath in and breathe out through your mouth. Exhale fully. Once again, take another deep breath in, and as you let go, feel that your body is relaxing more and more. आपका मन शांत और स्थिर होता जा रहा है। अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कीजिए। ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। And you take a sankalpa that this meditation you will dive deep into it. Allow yourself to dive deep. धीरे से अपना ध्यान अपने सर के ऊपरी भाग पर ले जाए। महसूस कीजिए कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर को छू रही है। Know that this light is pure love, divine love. This light is healing energy. This light now begins to flow slowly through your entire body. First, relaxing your forehead. यही रिलैक्सिंग लाइट आपकी आंखों को आराम महसूस करने पर मजबूर कर रही है।
बिल्कुल relaxed. Now, your jaw and neck. Relaxing your shoulders completely. Feel the softness flowing through your shoulders. Feel yourself free. You don't carry any discomfort, either yours or anybody else's. Know that while you heal others, that you honor yourself first. Your heart also deserves a lot of love. Allow your heart to feel that love. बहुत प्यार महसूस करिए अपने आप के, अपने दिल के लिए बहुत प्यार. Your soul deserves great abundance, more than you can imagine. Your body deserves a perfect health too. Now feel this golden light entering your heart. Allow this light to pour into your heart. Your heart is now beginning to glow brighter and brighter. Your heart is growing bigger and bigger. So big. Imagine it has gone outside of your body and creating a warm glow around you. Inside this heart lives infinite love. Your heart is feeling love for you. It finds you worthy. You are just so beautiful and enough, exactly as you are. On this planet, nobody can be as beautiful you as you are. Accept it, love it. Feel the emotions that I speak now. I deeply and completely love myself. मैं अपने आप से गहराई और पूर्णता से प्रेम करती हूँ. I honor my healing gifts. I am open to receiving abundance in every form, material and spiritual. I am open, I deserve and I'm open to healthy, loving relationships.
am open to receiving radiant health. मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल फैंटास्टिक, उत्तम है. I am receiving financial freedom. I allow money to flow to me with ease. धन मेरे ओर सहजता से आकर्षित होती है. Money supports my healing mission. The more I receive, the more I can serve. Any guilt or promise I made about money in this life or any of my past lives, I am releasing. Release. जाने अनजाने में कोई भी मैंने प्रॉमिस किया हो पैसों से ना जुड़ने की, मैं उसे छोड़ देती हूँ. बिल्कुल. In this life or any past life, I'm letting it go. I'm releasing it. You are releasing also any fear around success which you may have picked up from any life. Let it go. Release, release, release completely. अपने आप को खाली कर दो. Let success flow to you. Let abundance be your natural state. समृद्धि आपके लिए स्वाभाविक है. As your whole body is glowing, imagine, think, or feel you're walking through a beautiful garden. एक सुंदर बगीचे में आप टहल रहे हो और जैसे सांस लेते हो, you feel the freshness of the air. The air is fresh and healing. Birds are singing very quietly, very softly around you. You are feeling peaceful. And deeply loved. आपको खुद से बहुत प्यार हो रहा है, बहुत. आप बहुत खुश हो अपने आप से. और आगे चलते चलते आपको दिखता है एक सुंदर मंदिर. It's a beautiful temple of light. ये मंदिर प्रकाश का मंदिर है. तीन सीढ़ियां हैं. As you enter this temple, you feel unconditional love surrounding you. जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, आप बिल्कुल इस लाइट में घिरे हुए हो. Absolutely unconditional love. बहुत सारा प्रेम महसूस कर रहे हो. और अंदर आते ही
आपकी मुलाकात होती है आपके सर्वोच्च स्वरूप से. In the center of the temple is your highest self, जिसे सब मालूम है, जिसको आपसे प्यार भी है. Your highest self is radiant and powerful. आपका सर्वोच्च स्वरूप तेजस्वी और शक्तिशाली है. महसूस करिए, फील करिए. This version of you is brimming with health, is wealthy, is loving and completely fulfilled. संतुष्ट है. आपका यह स्वरूप स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम पूर्ण और पूरी तरह से संतुष्ट है. फील करिए. इस फीलिंग को याद कर लीजिए. इस फीलिंग को अपना लीजिए. And as you merge yourself with your higher self, आपके दिल में कुछ शब्द उभर रहे हैं. You are here to heal without suffering. You're here to receive as much as you give. And love flows towards you easily. प्रेम सहजता से आपकी ओर बहता है. हमेशा. And love resides in your heart all the time. प्रेम आपके हृदय में बसता है हमेशा. और इसी प्रेम के कारण आपकी जीवन और सहज होती जा रही है. Money is flowing towards you easily. Clients who value your gifts are naturally drawn to you. जो लोग आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं. आपकी हीलिंग लोगों का जीवन बदलता है. फील करिए, आपका ये मैजिकल गिफ्ट लोगों का जीवन बदलता है. You are respected for your wisdom. आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया जाता है. आपकी उपस्थिति का सराहना की जाती है. You are appreciated for your presence always, wherever you go. Feel that you are rewarded abundantly for your services. Feel it. Feel that aura surrounding you. Now, see yourself in a loving relationship. बहुत प्यार है आपके हर एक संबंध में. Feel it.
You feel emotionally safe. You feel understood. आपके आसपास के लोग आपको समझते हैं. You feel cherished and respected. आप स्वयं को प्रिय और सम्मानित महसूस करते हो. Love flows very naturally between you and your partner. Communication is honest and gentle. All communication between you and your dear ones is very honest and gentle. All your relationships around you support your healing journey. Remember, you're never alone. The divine is always with you. बस महसूस करने की देरी है. Feel the strength from this. Feel your whole body transforming from this thought alone. Now, bring your focus to your physical body. अपने शरीर पर ध्यान दीजिए. See every cell in your body glowing with golden light. अपने शरीर की हर कोशिका को सुनहरी रोशनी से चमकते हुए देखिए. चमक को महसूस कीजिए. Your immune system is becoming stronger and stronger every day. Feel it. आपकी इम्यून सिस्टम हर दिन मजबूत होते जा रही. Every organ in your body functions perfectly. आपके सभी अंग पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं. Allow your body to remember that it knows how to heal itself. आपका शरीर फिर से याद कर लिया कि वो स्वयं को ठीक करना जानता है. Every breath you take fills you with life force energy. हर सांस आपको जीवन ऊर्जा से भर रही है. Whenever you go to sleep, you'll always wake up feeling energized and refreshed. आप हर सुबह ऊर्जावान और ताजगी से भरे हुए जागते हैं. Health flows through you naturally.
Vitality flows through you naturally. जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रभावित होती है. You are feeling younger, lighter, and happier. Feel it. Feel the lightness of youth and joy. Now, imagine your ideal healing career. See yourself helping others with joy and confidence. Your schedule feels balanced and peaceful. Your work nourishes your soul. आपका कार्य आपकी आत्मा को पोषण देता है. You're receiving wonderful opportunities effortlessly. Now people trust your healing energy. लोग आप पर विश्वास करते हैं. Your reputation is growing naturally and beautifully. You are financially rewarded for your gifts. आप आर्थिक रूप से भरपूर हो. You live in harmony with purpose and prosperity. Feel it. Make it your own. Take a deep breath now and feel gratitude filling in your heart, completely filled with gratitude. From head down to your toes, feel gratitude. Gratitude is multiplying your abundance with ease. Gratitude is attracting miracles in your life. You are a magnet to love, to health, and to prosperity. Everything around you is unfolding perfectly for you. Trust the timing of your life. Trust your healing path. Basically, trust yourself completely. You know that you're worthy of deep love. You know that you're worthy of abundant wealth. You know that you're worthy of vibrant health, peace, and happiness. Your healing gifts are so valuable. The universe is fully supporting you. Now love and accept yourself completely. Know that you are just so wonderful. Allow miracles into your life. Allow it. You're ready to receive it. Not just now,
throughout your life. Take another deep breath in and slowly exhale, making your out breath longer than your inhale. And as you do this, feel peace in every part of your being. Always remember and walk with confidence, knowing you are healed, you are loved, you are abundant, you are powerful and whole. Feel it right from your head down to your toe. Feel it. I will now count from 1 to 5. As I count, you will return slowly, feeling refreshed and empowered. 1, slowly become aware of your body. 2, become aware of the positive energy around you. 3, you're feeling lighter and happier. Feel it. 4, start moving your fingers and toes gently. And 5, slowly open your eyes whenever you're ready, feeling absolutely peaceful, confident, healthy, and abundant. Your transformation has begun and it shall continue forever and ever. It is done. It is done. It is done. थैंक यू सुष्मिता मैन, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, फैबुलस, पेपर वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, इतना अच्छा आपने करवाया और इतनी मीठी आवाज में आपने कराया। थैंक यू सो मच। Fabulous, ma'am. Thank you इसमें very जाने के much. लिए हमें जरूरत नहीं अकाउंटिंग की, आपकी आवाज ही काफी है मेडिटेशन के लिए। Miraculously big Thank you. feeling, with divine feeling of it. Thank you very much. Thank you. बहुत ही बढ़िया, Thank you. Thank you, बहुत ही बढ़िया। Sushmita. Thank you so much. Learning. Okay. मेलोडियस वॉइस, बहुत ही Right. सूदिंग। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you so much. बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा था। I thought I'll do for self-love. यही तो सबसे important relation है. यस मैम, यस। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुष्मिता जी, हमारे लिए इतना बढ़िया सा मेडिटेशन रेडी करवाने के लिए, और इतना अच्छा सा मेडिटेशन हम लोग करवाने के लिए थैंक यू सो मच।
तो चलिए जी, आज का हम अपना पावर बुक का सफर आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पावर बुक का सफर, अपनी जर्नी। वेलकम स्नेहा, आज हमारे साथ में आने के लिए। तो चलिए जी, कल हमने पढ़ लिया था, इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर जो है, चल रहा है शक्ति और स्वास्थ्य। तो देखते हैं पावर बुक स्वास्थ्य के लिए और क्या समझाती है। जो अभी तक हमने इसमें समझा कि कैसे हमारे लिए 100 ट्रिलियन कोशिकाएं वर्किंग कर रही हैं, कैसे हम अपने, जो हमारे अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, उनको आदेश दे सकते हैं कि वो हमारे लिए वर्किंग करती रहे। कैसे वो हमारी सारी धारणाओं को, जो हम धारणाएं सोच के बैठते हैं या हमने अपने अंदर अपनी लाइफ के अंदर धारणाएं बनाए हैं, तो कैसे उन धारणाओं को वो रियलिटी में लेके आती है। कैसे हमारे अंदर ये वर्कर्स जो है दिन रात काम कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कहे हुए शब्दों को रियलिटी में लाने के लिए। तो कैसे हमें इन 100 ट्रिलियन जो कोशिकाएं हमारे अंदर हैं, कैसे हमें उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग बताना है। कर तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं है, जो हमारी धारणाएं हैं वो उन्हीं धारणाओं को रियलिटी में लेके आ रही है। अब हम लोगों को ये मालूम चल चुका है कि वो हमारे लिए वर्किंग कर रही है, तो कैसे हमें अपनी लाइफ को या अपने स्वास्थ्य को उस तरीके से लेके आना है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन लेकिन कर नहीं पाते हैं। चाहते तो है कि हम, मैं सुंदर लगूं, बहुत बढ़िया सा सुंदर लगूं, मैं अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हम, हमारी सोच कुछ अलग होती है लेकिन हो कुछ अलग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम पॉजिटिविटी में तो रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। हमारे आसपास का कई बार वातावरण ऐसे हो जाता है, हमें ऐसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ रिश्तेदार, ऐसे कुछ हमारे आसपास में लोग आ जाते हैं जो हमारे ना चाहते हुए हमें कुछ ना कुछ किसी तरीके से कोई माहौल हमारे लिए क्रिएट हो जाता है कि हम लोग उसमें, उस लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, वो माहौल जो है हमारी वजह से ही हो पाता है कई बार, लेकिन हमें मालूम ही नहीं चलता, अनचाहे हम उस लूप में फंसते जाते हैं। हमें नहीं मालूम था पहले कि अगर मान लो मैंने किसी बीमारी के बारे में सुना और मैं डर गया, तो उसके बाद में मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उस, जैसे मान लो मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर सर्च करते ही गूगल ने मेरे को वहां पे बताना शुरू किया उस बीमारी के बारे में। और मेरे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि हाँ, इस बीमारी के बारे में जरा अच्छी से ज्ञान में कि कहीं बाई चांस इसमें एक दो सिम्टम मेरे को मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कोई कोई बीमारी हो रही है कुछ। तो मैं उसको ना सर्च करता हूँ, मैं उसको थोड़ा गहराई से जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो क्या होता है, गूगल में जैसे ही सर्च करता हूँ और उसके बाद में यूट्यूब पे चलाता हूँ, तो यूट्यूब में उससे रिलेटेड ही वीडियो आने शुरू हो जाते हैं कि ये वीडियो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स ने ये संदेश भेजा आपके लिए। अब हमें लगता है अरे भाई साहब, ये तो मैं वाकई, अभी तो मैंने सर्च किया था इसके बारे में और शायद ये यूनिवर्स का संदेश ही मेरे लिए आ गया। क्योंकि कई लोग ना बड़े अपने यूट्यूब को, अपने चैनल को चलाने के लिए ये वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स का ये आदेश है। और हम सोचते हैं अरे वाह, भगवान ने मेरे लिए भेज दिया है। हो सकता है कहीं मेरे एक दो सिम्टम मिले थे, कहीं मुझे ये दिक्कत तो नहीं होने वाली है। और हम वो चीज देखना शुरू कर देते हैं, बस वो देखते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड यूट्यूब एल्गोरिदम चालू हो जाता है और एल्गोरिदम की वजह से
वही चीज हमारे सामने अलग अलग तरह से अलग अलग लोग पेश करना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है अरे जो इसने बोला दो सिम्टम तो मेरे यहाँ मिल गया, अब इसने बोला अरे एक सिम्टम तो यहाँ से भी आ गया, अरे एक सिम्टम तो इधर से भी मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो हमारे दिमाग में घुसना शुरू हो जाता है, और आकर्षण का नियम तो चालू हो ही चुका है, वो तो चल ही रहा है। तो आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें हमारे लिए लाइफ के अंदर चलनी शुरू हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हम वो रास्ते की तरफ जो मतलब कि हम अच्छे थे, और धीरे धीरे आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग हम उस बीमारी के जो सिम्टम्स है ना, पहले दो थे हमारे, एक वीडियो ने और बढ़ा दिया, दूसरे वीडियो ने और बढ़ा दिया, तो हमने उस बीमारी को अपनी तरफ खींच लिया, और पता चलता है कि बीमारी पहले तो नहीं थी, अब धीरे धीरे पता चलता है कि अरे यार वो बीमारी चालू हो गई। अब वो बीमारी चालू हो गई तो हमने क्या किया, हमने लोगों से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि यार मुझे लग रहा है, मेरे तो सिम्टम पहले तो यार ऐसा लगता था नहीं है, अब धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं यार, पता नहीं क्या बात है। तो कौन सी दवाई लेते हो तुम? अच्छा घरेलू ये वाली दवाई चलती है तुम्हारी? हाँ मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, घरेलू ये चीज चल रही है कि ये चीज दो चार चीजें मिक्स करके पानी में उबालूंगा, छानूंगा, उस पानी को पीऊंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बताता है नहीं 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 यार, इसके तो तुम ये गलती कर रहे हो, अरे ये चीज नहीं, इसके अंदर ये चीज और डालो ना, और अच्छे से, तो बड़ी जल्दी वो उसमें रिकवरी हो जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, एक नई चीज और बढ़ा देता हूँ। फिर कोई कहता है अरे ये इससे कुछ नहीं होता, एलोपैथिक दवाई बड़ी अच्छी आती है इसकी, मैं एलोपैथिक तुम्हें दवाई बता रहा हूँ, बस लेना शुरू करो और उससे आराम आ जाएगा, बड़ी जल्दी इम्पैक्ट आता है उसका। तो मैं एलोपैथिक की तरफ भाग पड़ता हूँ, और जब देखता हूँ अरे एलोपैथिक मैंने 3 4 दिन लिया, हाँ अब मेरे को लग रहा है ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी अंदर से मन में डर है कि यार एलोपैथिक ना तो दबा देती है, ये ना तो क्लियर नहीं करती अच्छे से, एक बार होम्योपैथिक करके देखो। मैं होम्योपैथिक की तरफ भाग पड़ता हूँ। ऐसे करके मैं धीरे धीरे आकर्षण के नियम के अनुसार अपनी बॉडी के अंदर उस बीमारी को मैं धीरे धीरे और गहरा और गहरा करता जाता हूँ। और होता क्या है, उस बीमारी के साथ में मेरे साथ क्यों थोड़े दिनों बाद में पता चलता है और बीमारियां जुड़नी शुरू हुई। मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों, फिर बाद में मुझे ये समझ नहीं आती कि आकर्षण का नियम चल रहा है, मैं जो आ रहा है उसके साथ में बीमारी को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी बताता हूँ, वो मेरे पास अपनी दो बीमारियां और बताता है, फिर मैं किसी और से बात करता हूँ तो फिर वो अपनी बीमारी मेरे को बताता है। अब ये क्या हो रहा है, पहले तो मैं एक तरह की दवाई ले रहा था, अब तो मेरे पास में बीमारियों का वो मेन्यू पूरा क्रिएट हो गया है, एक बीमारी के साथ में दूसरी फ्री, दूसरी के साथ में दूसरे से बात की तो उसकी दो बीमारियां फ्री, तो बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब मुझे तो मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाता है कि आकर्षण का नियम 24 आवर्स मेरे साथ चल रहा है। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ते बीमारी के कदम बढ़ाते, एक बीमारी तो अच्छे से ली, साथ में दो चार बीमारियां और अड़ोसियों पड़ोसियों से भी ले ली, बातें कर करके। अब मेरे को करना क्या है, मैं तो पावर बुक प्रैक्टिशनर हूँ, अब मेरे को तो पावर बुक में समझ आ गई कि भैया मैं जो धीरे धीरे मेरी सोच लेके आ रहा हूँ, वो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मेरी बात सुन रही हैं, वो 100 सेवक मेरे अंदर बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं कि आप सिर्फ हुक्म कीजिए और हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाना, वो तो सिर्फ हमारे हुक्म के ताबेदार है, वो तो कहते हैं जी आप बस दो हमें हुक्म, हम तो आपके लिए काम करने को तैयार है, हम तो तुम्हारी प्रजा है, हमारे लिए तो तुम ही राजा हो, तुम ही हमारे देवता हो, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। जब मेरे अंदर ये 100 ट्रिलियन जो सेवक जो कोशिकाएं बैठी है, वो मुझे भगवान समझ रही है, और मैं उनके लिए भगवान हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का, और अपना राजा भी हूँ मैं, मेरा इस साम्राज्य का, मेरे इस शरीर का मैं ही राजा हूँ, मैं ही महाराज हूँ। तो मैंने जो सोचा है, जो मैंने आदेश दिया तो उन्होंने तो पूरा करना ही करना है। अब मेरे को आदेश जो है सोच समझ के देना है कि उनको क्या आदेश दूं, किस तरीके से उनको लेके आऊं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ कि नहीं मेरी एज तो भैया, कहता हूँ मेरी तो एज कम है, मैं तो 25 वर्ष का हूँ, मैं तो यंग हूँ, मैं तो एनर्जेटिक हूँ, मेरा तो मॉर्निंग इतनी बढ़िया होती है,
वो पूरा दिन मैं एनर्जी में रहता हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी में रहता हूँ। तो जैसे जैसे मैं ये कहना शुरू किया मैंने, तब से मैं देखता हूँ कि वाकई मेरा पूरा दिन तो बड़ा एनर्जी से रहता है। वाकई मेरा पूरा दिन तो मैजिकल रहता है। मैं जब जो जो मॉर्निंग के अंदर बोलता हूँ या सोचता हूँ कि आज मेरा दिन ऐसा जाने वाला है, मेरा आज वंडरफुल जाने वाला है, मैं आज एनर्जी से भरपूर रहने वाला हूँ। और मैंने लोगों से अपने बारे में, अपने जो कुछ भी ऐसी कोई मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, मैंने लोगों से डिस्कस करना बंद कर दिया है। मैं किसी से बात नहीं करता। बस मैं अपनी जो मेरे अंदर ये बैठे हुए हैं, मैं उनको आदेश दे रहा हूँ, या मैं अपनी सोच में ये कह रहा हूँ कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे तो किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, धीरे 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 मेरी बॉडी के अंदर सेम वैसे ही चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं पहले से एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं पहले से बड़ा खुश रहता हूँ, पहले से मुझे लगता है कि हाँ मैं फिट हूँ। और पहले से मुझे लग रहा है कि अरे मेरे को तो यार वो सब कुछ मिलता जा रहा है जो मुझे अपनी लाइफ के अंदर चाहिए था, जो मेरी बॉडी के लिए मैं जो मेरी जो सोच थी ना, वो मेरी बनती जा रही है। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी 10-12 साल 15 साल पुरानी फोटो उठाई है, और वो फोटो मैंने अपनी गैलरी के अंदर अपने सामने रखी है, अपने फोन के ऊपर रखी है। और मैं उसको बार बार देखता हूँ, उस फोटो को खुश होता रहता हूँ कि वाह, मैं बड़ा सुंदर दिखता था, वाह मैं बड़ा हैंडसम नजर आता था। और पहले भी हैंडसम था, अभी थोड़ा और ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ। मेरी जो फेस है देखो कितना अब पहले जैसा फेमिलियर होता जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को जो 10-15 साल पहले का राजेश था, उसको मैं देख रहा हूँ बार बार, उससे प्यार कर रहा हूँ मैं बार बार, उसको फोटो को निहारता रहता हूँ। दिन में कई बार उस फोटो को उठाता हूँ, उस फोटो को देखता रहता हूँ, और लोगों को बताता रहता हूँ, ये देखो, ये राजेश अरोड़ा है जो पहले ही देखो, ये वाला राजेश अरोड़ा। अगर कोई मेरे से फोटो मेरी मांगता है कि राजेश अपनी कोई फोटोग्राफ देना, वैसे ही किसी काम के लिए भी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के नहीं, मैं तो 10-12 साल पुरानी वाली फोटो देता हूँ उसको। तो अपने आप को जब मैं अब मेरे को मालूम चल सका कि पावर बुक जो समझा रही है, या जो कोशिकाएं मेरी कैसे काम कर रही है, मेरे को ये समझ आ गई है कि मेरे को फैलाना क्या है, मेरे को लोगों को बताना क्या है। क्योंकि मुझे मालूम है आकर्षण का नियम क्या कह रहा है। आकर्षण का नियम कह रहा है जो आप देते हो वो आपके यहाँ बढ़ के आता है। तो मेरे को तो अपनी जो 10-12 साल 15 साल पहले वाली फोटोग्राफ है ना, मुझे वो फैलानी है, मुझे उसको देखना है, उसको निहारना है बार बार में। तो जब मैं ये करूंगा तो मेरी कोशिकाओं को जो 100 ट्रिलियन मेरे आप अंदर है, उनके पास ये संदेश जाएगा कि ये जो फोटोग्राफ है ना, इसकी तरफ में बड़ा ध्यान है। तो आकर्षण का नियम वहां चालू हो जाएगा, तो मेरे अंदर वो जो कोशिकाएं वो ये काम करना शुरू कर देंगी, मेरे को वैसा बनाना शुरू कर देंगी। क्योंकि अब मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को अपनी लाइफ में कैसा बनना है। तो जब मेरे को पता चल चुका है तो फिर मैं तो वो शुरू कर चुका हूँ। ये तो मेरा आइडिया ना मेरे दिमाग में हमेशा घुस जाता है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। और जब मुझे जरा सा पता चलता है कहीं से, तो मैं उसको फट से ग्रैब कर लेता हूँ और उसको लागू करना शुरू कर देता हूँ। और जब से मैं ये कर रहा हूँ चीजें लागू करना, वैसे उस दिन से मेरे लिए और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट मेरी लाइफ होती जा रही है। तो चलिए, अब आगे थोड़ा सा आज हम पढ़ते हैं कि कैसे हम और अपने स्वास्थ्य को, जो थोड़ा हमें और अभी तक पावर बुक ने बताया, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा सा कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और उसके होने की कल्पना करें। अभी आप देख रहे हो मेरे पास में लैपटॉप कम से कम तो 7-8 फुट दूरी पे पड़ा हुआ है, और उसके अंदर लिखा हुआ है, और मैं बड़ी आसानी से पढ़ पा रहा हूँ। तो रोज मैं अपनी आंखों के लिए बोलता हूँ कि मैं चाहे पास से देखूं, चाहे मैं दूर से देखूं, तो मेरी आंखें की रोशनी जो है ना, वो कंपैटिबल है इसके लिए। मेरे को अच्छा सब कुछ साफ सुथरा और बढ़िया नजर आ रहा है, चाहे मैं पास से पढूं चाहे दूर से पढूं। तो मेरे को तो किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है पढ़ने के अंदर। और जब से मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए और क्लैरिटी होती जा रही है। मेरी जो आंखों की रोशनी है, मुझे खुद में बड़ा इम्प्रूवमेंट बीच में होना शुरू हो गया था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है
मैं मोबाइल ज्यादा देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था थोड़ा हल्का सा ना बीच में मैं नहीं नहीं, मेरे को सॉरी, मेरे को तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे नहीं। हाँ जी, मेरी तो बहुत अच्छे से आंखों की रोशनी जो है ना बहुत बढ़िया होती जा रही है। दूर का, पास का, मेरे को सब अच्छे से नजर आना शुरू है। अब आप देख रहे हो, मैं वो बोलते बोलते मैं रुका। अब मेरे को जहाँ जाना नहीं है, वो तो उस बारे में सोचना ही क्यों है, उस चीज के बारे में बताना ही क्यों है मेरे को किसी को भी, कि जो मुझे नहीं चाहिए। अब जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वो बताऊंगा। तो अपने जो चीज नहीं चाहिए ना, नेगेटिव चीज, उसके लिए बैरियर लगा दो। उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसके बारे में बताना बंद कर दो। क्या था क्या नहीं था वो छोड़ो ना, उसको मिट्टी डालो। जो आपको चाहिए उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करो कि वाह, मेरी जो रोशनी आंखों की फर्स्ट क्लास बढ़ती जा रही है। चश्मा तो अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हर थोड़े दिन में मैं जा रहा हूँ, तो क्या वहां पे अपना आई टेस्ट करवाता हूँ, तो कहता है क्या बात है जी, आपका तो क्या चक्कर है, आंखों के अंदर क्या लगवा लिया, ऐसी कौन सी चीज करवा ली आपने, आप क्या करता जा रहे हो मेडिटेशन इतना बढ़िया की। धीरे 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 आपको तो मुझे लग रहा है चश्मा हट ही जाना है अब। तो वो चश्मा मेरा तो मुझे मालूम है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही, आज तक तो मैंने लगाया नहीं, और आगे भी मुझे मालूम है जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि मेरी नजदीक की और दूर की दोनों जो आंखों की रोशनी मेरी बढ़ती जा रही है, और मेरे को सब कुछ साफ साफ नजर आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा नजर आता है। तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दे और इसके होने की कल्पना करें। तो प्रेम भाव देना हमें बहुत जरूरी है। ये प्रेम हम हर चीज के लिए दे रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारा कैरियर हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, तो उसके अंदर हम प्रेम कंटिन्यू देते जा रहे हैं। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दे, उसके होने की कल्पना करें। यानी कि जो चाहिए उसके लिए कल्पना करना शुरू कर दो, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना का शुरू कर दो, उसके लिए बताना शुरू कर दो। को बढ़ाना है तो इसके लिए काम करो कि मुझे तो आसपास की क्या, दूर दूर की आवाजें भी बड़ी साफ और बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है। जो चाहे जितना मर्जी धीमा बोले, मुझे बहुत अच्छे से सुनाई देता है। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे। तो प्रेम देना शुरू करो, अपने जो चाहिए आपको उसके लिए प्रेम देना शुरू करो, उसके लिए सोचना शुरू करो, और उसके लिए लोगों को बताना शुरू करो। अब वो नेगेटिव बातें बतानी बंद कर दो, पॉजिटिव बातें बतानी शुरू कर दो। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहे। अब ग्रेटिट्यूड देना भी बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड अगर हम देते रहेंगे तो अपने साथ में प्रेम और ग्रेटिट्यूड एक इतना पावरफुल टूल है कि आपको बड़ी जल्दी से आपके मन चाहे की तरफ लेके जाएगा। तो बीइंग ए मैजिक बुक, पावर बुक प्रैक्टिशनर, आपको अपने मन चाहे की तरफ जाना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन ये प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। तो ग्रेटिट्यूड करते रहो अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने फिट शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने सुनने के लिए, अपने बोलने की क्षमता के लिए, अपने सूंघने की क्षमता के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आदर्श वजन के लिए, अपने स्लिम एंड ट्रिम बॉडी के लिए, अपने सेलिब्रिटी होने के लिए, अपने राजा होने के लिए, क्योंकि 4 ट्रिलियन कोशिकाओं के आप राजा हो, महाराजा हो। आप उनके लिए क्रिएटर हो, आप खुद क्रिएटर हो ही, आप उनके लिए भगवान हो अपनी बॉडी के लिए। तो खुद को मानो कि हाँ मैं ये हूँ, और जब ये शुरू करोगे तो आप अपना स्वस्थ शरीर पा सकते हो, बड़े अच्छे से पा सकते हो। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि जब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है, उसकी 2 छोटी बेटियां बिना माँ के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई, लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी।
हर सुबह जागते हुए अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने ये कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञों से बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन ये काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वह चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। अब क्या करना शुरू किया उसने? उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया अपने हृदय को कि वाह, मेरा हृदय तो एकदम वंडरफुल है, मजबूत है, इतना अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल पिंक है मेरा हृदय, क्या सुंदर है हृदय मेरा, कितना प्रेम, कितना प्यार इसके अंदर भरा हुआ है मेरे हृदय के अंदर। वाह, अपने हृदय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो हृदय है इतना वंडरफुली काम कर रहा है, इतना वंडरफुली दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, मेरी पूरी बॉडी को मुझे पूरा दिन तरोताजा रखता है, मेरा एनर्जी देता है मेरी पूरी बॉडी को। वाओ, बिना रुके बिना थके मेरा ये हृदय मेरे लिए काम कर रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे हृदय, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ के इतने अच्छे दिन मुझे दिखाने के लिए, एनर्जेटिक मेरी लाइफ को बनाने के लिए। मेरे हृदय, थैंक यू सो मच मेरी पूरी बॉडी में ब्लड, मेरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे सारे बॉडी पार्ट बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम बड़ा अच्छे से काम कर रहे हो। इसकी वजह से सारे पूरे मेरे शरीर के अंदर इतने अच्छे से तुम ब्लड देते हो, इतने अच्छे से काम कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैंने क्या किया, अपने अपने हाथ को अपने हृदय पे रखा, अपने हृदय को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, अपने हृदय को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, अपने हृदय को प्रेम देना शुरू किया। तो क्या हुआ, जब मैंने ये करना शुरू किया मेरी बॉडी के पार्ट्स को, तो वो जो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाओं को लगा वाह, वाकई ये देखो, हमारा जो राजा है, हमारा जो भगवान है, हमारे लिए कितना कृतज्ञ है, हमारे लिए कितना प्यारा बोल रहा है। और जब हम अपने, आपने देखा होगा, जब हम अपने पास काम करने वाले जितने भी हमारे मेरे पास में वर्कर्स है, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ प्रेज करता हूँ, उनको प्यार से बात करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ, उनके लिए अच्छा सोचना शुरू करता हूँ, तो उनके अंदर एक जोश आ जाता है। वो बड़े अच्छे से जो अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो और अच्छे से और अच्छी दुगनी लगन से मेहनत से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही मेरी सारी बातों को मानते हैं, तो मेरी सारी बातों को समझते हैं। तो जब मैं ये करना शुरू करता हूँ, वो ग्रेटिट्यूड करता हूँ, तो उनके अंदर और जोश आता है, और अच्छी भावना उनके अंदर आती है, और वो अच्छे से वर्किंग करना शुरू करते हैं। तो जब मैं ये ऐसा करता हूँ, तो वो लोग जो मेरे अंदर ये कोशिकाएं हैं वो बड़े अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपने यहाँ पढ़ा कि उस महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ हो गया। तो अगर कोई छोटी मोटी कोई भी किसी तरह का इश्यू बॉडी के किसी पार्ट में आ रहा है, तो उसके लिए वर्किंग करना शुरू करो, सोचना शुरू करो, बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। तो जब हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं, चाहे वो 10% काम कर रहा है, 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 40 कर रहा है, अब मुझे पता है कि मेरा तो 100% बढ़िया काम कर रहा है, तो अब मैं जब 100 कर रहा है तो उसको ग्रेटिट्यूड क्यों देना है, क्योंकि कर तो रही है वो काम। लेकिन नहीं, अगर मैं उस चीज के लिए उसको और ज्यादा अच्छे से प्रेज करना शुरू कर देता हूँ कि वाओ, तुम तो 100% क्या, तुम तो अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, मजा आ गया, थैंक यू सो मच तुम्हारे ये काम करने के लिए। तो क्या होगा, वो खुद तो सही काम कर ही रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी को भी ना वो सही काम करने के लिए मजबूर कर देगा कि भैया देखो, मैं तो बड़े अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरे को तो रोज तारीफ मिलती है, तो तुम जो ना काम चोरी मत करो, ढंग से काम करना शुरू करो, ढंग से काम करना शुरू करो, तो तुम्हें भी कल से इन्होंने बोलना शुरू कर देना कि हाँ, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो खुद तो अच्छे से काम कर रहा है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी जो लीवर है, जो किडनी है, इन सब को भी कहेगा कि भैया, मेरा ओनर मेरे को रोज ग्रेटिट्यूड करता है मेरे अच्छे से काम करने के लिए,
तो तुम भी जरा अच्छे से काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे पास में बताओ किस चीज की कमी है, अच्छा इस चीज की कमी है, मैं तुम्हें और अच्छे से देना शुरू कर रहा हूँ, तो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाओगे आप। ठीक है। उस महिला ने प्रेम के नियम के अनुरूप काम किया था, उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि एक स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में इसका उल्लेख ना करें। उसको डिस्कम्फर्ट बोल रहे हैं। अपने आप को किसी भी बीमारी के लिए बार बार उस बीमारी का नाम अपने माइंड में नहीं लेके आना, नहीं सर्च करना। अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आराम से वो मेडिसिन लेते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हर एक गोली लेने के साथ में ग्रेटिट्यूड ये देता है कि वाओ मेरा तो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, और ये जो गोली है ये छूटती जा रही है, मेरा सारा डिस्कम्फर्ट दूर होता जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी ये बताया था कि जब यहाँ मेडिटेशन करवाई जाती है तो वहां पर 10 to 1 स्टेप या 20 to 1 स्टेप बोला जाता है कि मैं 20 से 1 तक काउंट करूंगा या करूंगी, आपको स्टेप उतारेंगे, या कोई प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का करवाया जाता है। कोशिश मैं सब अपने जितने भी यहाँ मेडिटेशन वाले जो करवा रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जब भी कोई मेडिटेशन करवाए तो वो काउंटिंग वाला प्रोसेस, चाहे 5 to 1, चाहे 10 to 1, चाहे 20 to 1, तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करवाए। या ट्रांस में ले जाने के लिए इन चीजों को जो रिवर्स काउंटिंग है वो वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि लोग बड़ी जल्दी उसमें ट्रांस में चले जाते हैं। तो यूज करना अगर हम बंद कर रहे हैं तो उसको यूज करें जरूर। और बाकी सब लोग जो यहाँ मेडिटेशन हमारे साथ करते हैं वो इस टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करें। वो बोले कि जैसे ही ये, चलो इन्होंने 10 to 1 बोला, तो जैसे ही काउंटिंग 1 पर आएगी ना तो मेरा ये डिस्कम्फर्ट दूर होने वाला है मेरी बॉडी से। मेरा ये डिस्कम्फर्ट धुआं भर के मेरी बॉडी से निकलने वाला है। मेरा ये डिस्कम्फर्ट मेरे पैर के तलों में से निकलने वाला है लिक्विड बन के। मेरा ये डिस्कम्फर्ट पसीने की तरह बाहर हो जाएगा मेरी बॉडी से। तो जब आप ये सोचो, ये करो आप कि इसके इन्होंने 20 to 1 का है, तो जैसे मैं 5 की काउंटिंग आएगी तो बार हो जाएगा। हो सकता है कई बार थेरेपिस्ट काउंटिंग करते करते 5 का बीच में भूल जाए क्या ना, 5 है तो 1 तो वो बोलेगा ही बोलेगा। तो आपको 1 के ऊपर कोशिश करनी है कि जैसे ही 1 की काउंटिंग आएगी वैसे ही 1 की काउंटिंग के ऊपर मैं अपना डिस्कम्फर्ट दूर कर दूंगा। तो जैसे ही वो शुरू होता है तो आप अपने माइंड को ये आदेश देना शुरू करो कि जैसे ही 1 की काउंटिंग आनी है मैंने अपना ये डिस्कम्फर्ट दूर कर लेना है, मेरी ये चीज जो मेरा ये बॉडी पार्ट है ये ठीक हो जाएगा। तो आप मान लो मेडिटेशन रोज कर रहे हो यहाँ पर, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब आप ये चीज करना शुरू करते हो, जो इतने अगर टाइम से देखो कोई चीज अगर उसमें कोई डिस्कम्फर्ट आ गया है तो वो आप धीरे धीरे ठीक होगा ना, 1-1%। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बड़ा लेजी है, बड़ा धीरे धीरे काम करता है, वो बड़ा स्लोली स्लोली करता है। तो ये नहीं कि आप एक ही दिन कहो कि एक एक मैंने आज बोला आज तो मेरा ये डिस्कम्फर्ट दूर, कल ये दूर। तो चमत्कार होता है जरूर लाइफ के अंदर, लेकिन चमत्कार में टाइम लगता है। जैसे यहाँ इन्होंने बोला 3 से 4 महीने। तो अब हमें अपना कोई बॉडी पार्ट अगर अच्छे से ठीक करना है तो वो धीरे धीरे होगा। तो उसके लिए धीरे 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 आपको अपने माइंड को रोज समझाना है। अगर मेडिटेशन के साथ कर सको तो ठीक है, नहीं तो रोज अपने आप बैठो और काउंटिंग करना शुरू करो, 5 4 3 2 1। और जैसे ही मेरी लंबे लंबे गहरे सांस लूंगा, मैं 1 की काउंटिंग करूंगा तो मेरा ये डिस्कम्फर्ट ठीक। तो मेडिटेशन नहीं ले रहे हो तो बैठ के इस तरह से भी कर सकते हो कि एक पे आने पे कुछ भी किसी तरह का भी आप अपने बॉडी को ट्रिगर, जिसको कहा जाता है हमारी लाइन के अंदर, कि एक ट्रिगर दे दो कि ये ट्रिगर मैं जैसे ही दूंगा मेरा डिस्कम्फर्ट दूर होगा। तो अपने अंदर एक ट्रिगर क्रिएट करो कि ये ट्रिगर जो मैं जब भी करूंगा, ये ट्रिगर मैं करते करते तो ये मेरे लिए ये चीज ठीक होने वाली है, मेरी बॉडी का ये बॉडी पार्ट का डिस्कम्फर्ट खत्म होने वाला है। तो आप इस तरीके से भी यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब
अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। तो अखबार की तरह, न्यूज़पेपर की तरह बांटना बंद कर दो, लोगों को समझाना बंद कर दो। अपनी बीमारी के लिए किसी भी तरह से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या चीज चल रही है क्या नहीं। अपने आप को, जो अड़ोसी पड़ोसी है, उनसे अच्छी अच्छी बातें शुरू करो। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी तरह की अगर यहाँ बीमारी में डिस्कशन चल रही हो तो उनको हाथ जोड़ के मना करो कि डिस्कशन भैया मत करो, ये करने से दिक्कत होती है। अगर वो लोग नहीं मानते तो वहां से अपने आप को जरा सा हटाने की कोशिश करो। अगर आप नहीं हट सकते तो ट्रांसपेरेंट अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर, जो मैं समझाता हूँ, प्रोटेक्शन लेयर दे दो कि जो ये बातें कर रहे हैं उनका मेरे माइंड के ऊपर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मुझे तो ये चीज सुनाई नहीं दे रही ना, मुझे अगर सुनाई भी दे रही तो यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, वो मेरे अंदर कहीं पे नहीं जा रही है। तो ये अपने लिए प्रोटेक्शन लेयर लगा के रखो, फिल्टर लगा के रखो, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला। सोच लो कि भैया ये बोल तो रहा, मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, तो अपना ध्यान कहीं और लेके जाओ, किसी चीज को पढ़ने के लिए। आजकल तो सबसे बढ़िया ना, 10 जने बैठे होते हैं और उनमें 5 जने मोबाइल लेके बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ मोबाइल के अंदर। अब देखो कि वो लोग नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, तो कर लो मोबाइल के अंदर फिर कुछ ना कुछ कर लो, उनका ध्यान हटा लो वहां से। तो बीमारियों की तरफ ध्यान मत लगाओ, क्योंकि आपको तो पता है, उनको नहीं पता, आपको तो पता है ना कि ना तो मेरे को बीमारी से नफरत करनी है, ना इस बारे में सोचना है, ना इस बारे में कहना है। बस मेरे को तो अपने डिस्कम्फर्ट को दूर करना है, और कैसे करना है वो सबको मालूम है, सब कर सकते हो। अब तो हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि कैसे हमने दूर करना है, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। तो साकार करना है अब हमें अपने आप को, इस जो भी डिस्कम्फर्ट है उनको हमें अपने बॉडी से दूर निकालना है। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। प्रेंटिस मेलफोर्ड 1834 टू 1891, नव विचारवादी लेखक। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय ये है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें रखें और इनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। अब यहाँ पे आया है कि अपने आसपास अच्छी चीजें रखें, लेकिन कईयों को मैं देखता हूँ कि ना, सोचा भी है समझा भी है, इतनी एज हो गई, लोग क्या करते हैं, दिन में लेनी है 2 बार दवाई या 3 बार लेनी है। अब वो क्या करेंगे, अपने बिल्कुल पास में सजा के रखेंगे उसको, बिल्कुल अपने नजदीक रखेंगे, हाथ के पास में इधर रख लेंगे, अपने बेड के ऊपर रख लेंगे, और ऐसी जगह रखेंगे जहां उनकी नजर बार बार पड़ती रहे। तो पता चलता है कि यहाँ पे भी डब्बा पड़ा हुआ है दवाइयों का, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर सामने भी कोई ना कोई दवाई पड़ी है। क्यों? अरे मेरे को दिन के अंदर 4 बार लेनी होती है, अगर मैं ना देखूं तो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। अरे मेरे को ये वाली दिमाग में भी रखनी पड़ती है, ये दवाई इधर है, आंखों की इधर है, ये मेरी इस चीज की दवाई है, ये मेरी इस चीज की दवाई है। अब क्या हुआ, मैंने अपने चारों तरफ दवाइयां दवाइयां घेरी हुई है, मेरे को याद आ जाए इसलिए मैंने अपने पास में रखा हुआ है दवाइयों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आसपास में चारों तरफ दवाइयां दवाइयां लेके बैठा हूँ। तो क्या होगा, सराउंडिंग में जब सारी चीजें ये रख के बैठोगे तो फिर आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो 2 के साथ में 4, 4 के साथ में 8, 8 के बाद में 16, और बढ़ाई जा रहे हो आप अपनी लाइफ को भी उन दवाइयों के लिए। फिर तो जाएगा कि फिर तो आप बार बार यही कहोगे ना, मेरा तो दिन दवाइयों से शुरू होता है, अब तो लगता है सिर्फ दवाइयां ही मेरी रह गई हैं। खाना तो मैं कम खाती हूँ, दवाइयां मैं ज्यादा खाती हूँ या खाता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि इसके लिए सिर्फ खाती हूँ, खाता भी हूँ भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं।
तो अपने आप को इन सराउंडिंग से बाहर निकालो। कोशिश करो कि आपकी दवाइयां बिल्कुल जहाँ ऐसी हो ऐसे प्लेस पे हो कि जहाँ ना किसी और को नजर आए, ना आपको नजर आए। अब कोई दूसरा भी आएगा, मान लो वो बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट एंड फाइन है, अब आपके घर में आया और पता चल रहा है आपके या आपका फैमिली मेंबर है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, वो तो अभी छोटा है, उसको तो किसी तरह की कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर वो बैठ रहा है तो आपके आसपास सारी सराउंडिंग के अंदर दवाइयां ही दवाइयां। अब उसकी नजर तो दवाइयों पे बार बार पड़ रही है, तो अनचाहे ही क्या हो रहा है, वो आपकी दवाइयां देख रहा है और आपकी दवाइयों में नजर पड़ रही है। तो आकर्षण का नियम तो चल ही रहा है उसके लिए भी 24 आवर। तो पता चल रहा है वो भी कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट कैच कर रहा है। तो जो होता है ना, मतलब कि बाप को भी यही प्रॉब्लम थी तो बेटे को भी यही प्रॉब्लम हो गई, अब बेटे के नीचे जो बेटा पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, उसको भी वही बीमारी लग गई। तो क्या है जी, ये तो जेनेटिक है, इसको प्रॉब्लम ये तो जेनेटिक चली आ रही है जी। बीमारी तो जेनेटिक हो जाती है ऐसे। तो जेनेटिक क्यों हो गई? आप तो अपनी बीमारी अपने बेटे को दिखा रहे हो। अब बेटे ने वो दवाई लेनी शुरू की तो उसका बेटा भी वही दवाइयां देख रहा है। तो आकर्षण का नियम तो चल रहा है, उसको ना होते भी वो गोली उसको देख रहा है बार 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 बार। हाँ जी, उसको पता है कि मेरे फादर इस चीज की दवाई ले रहे हैं। जब इस चीज की दवाई ले रहे हैं तो फिर पता चलता है कि वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है उसके लिए भी। तो देखो, हो सकता है कुछ भी ऐसा हो जेनेटिक हो, लेकिन हम उसको कुछ हद तक ठीक तो कर ही सकते हैं ना। मैं अपनी दवाइयों को उस बॉक्स को छुपा के रख सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे लिए कंपलसरी है, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं अलार्म लगा सकता हूँ एक, कि अलार्म लगाऊंगा और मैं जब सुनूंगा, जब मैं जाके उठूंगा और जाके लेके आऊंगा। अब एक चीज और देखो, अगर आप अपने से दूर रखते हो दवाइयों को और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उठ के जाना पड़ रहा है, वो दवाई निकालनी पड़ रही है, तो आकर्षण का नियम वहां पे तो चल रहा है ना, आप अपने से दूर रख रहे हो, तो वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी ना। आकर्षण का नियम यह भी तो चालू हो रहा है साथ में, ये तो सोचो आप कि अपने से आप दवाइयों को दूर कर रहे हो, तो आकर्षण का नियम तो और चालू हो जाता है। जो चीज जिस चीज को आप दूर करते हो वो चीज दूर होती जाती है। ये भी तो हमें देखना है। जिस चीज को हमें चाहिए मेरे पास में हो उसको पास रखना शुरू करो। जो आपको लाइफ में चाहिए हो उनके लिए सराउंडिंग्स क्रिएट करो, और जो चीज नहीं चाहिए उनको दूर करना शुरू करो। तो मेडिसिन को अपने से दूर रखना शुरू करो। ऐसी जगह रखो कि 10 कदम उठ के जाना पड़े, 15 कदम। अपने रूम में ही मत रखो। मैं तो कहता हूँ आप इस रूम में रहते हो तो परले मोहल्ले में जाके कहीं में रखो, दूर जाके रखो, अपने रूम घर के एक कोने में डाल दो उनको, किसी कोने के अंदर जहां में नजर ही ना जाती हो किसी दवाइयों के लिए। आपको उठ के जाना पड़े 10-20 कदम उसके लिए। तो अपने से जितना दूर करोगे उतनी जल्दी उस दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। उस सराउंडिंग्स में आने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तो आप जब देखो कि मेरे को कुछ दूर करना है, तो कुछ ऐसे लोगों को देखना शुरू करो जो बिल्कुल स्वास्थ्य हो, जो बिल्कुल वो उनको बार बार उनके सीरियल लगाना शुरू टीवी के अंदर देखते हो, उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू करो। वाओ, क्या फिजिक्स है, क्या बॉडी है, अरे कितना अपनी लाइफ के अंदर ये फिट है लेडी, वाओ। अरे इस एज की होते हुए भी देखो कितना जिम में कितना फिट फाट होके जाती है, बढ़िया, कितनी सुंदर लग रही है, वाह। इसका तो वीनस कितना स्ट्रांग है। पता है ना वीनस स्ट्रांग होने से क्या होता है? आदमी बड़ा सुंदर है, हैंडसम, ब्यूटीफुल नजर आता है। तो भैया वो देख के अरे वाह, इसका तो अलग अलग तरीके खोजो उसको प्रेज करने के लिए। उसकी बॉडी को देख के कुछ ना कुछ नए नए पावरफुल वर्ड, जैसे मैं पावर बुक के अंदर पावरफुल वर्ड कहता हूँ, तो कोई ना कोई पावरफुल वर्ड ढूंढो कि इसको फिट एंड फाइन बोलने के लिए मैं कैसे पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल करूं, कैसे मैं इसके लिए कुछ ऐसा करूं। लगा लो अपने सराउंडिंग्स के अंदर फोटोग्राफ, लगा लो अपने 10 साल 15 साल पुरानी फोटो जिसमें आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, जवानी के अपने वो दिन जो थे ना आपके, उन दिनों की फोटो लगाओ अपने सराउंडिंग्स के अंदर। सुंदर सुंदर फोटो है अपने घर के अंदर अपनी लगाओ, उसको देखो, प्रेस करो, वाओ मैं कितना हैंडसम, अरे पहले भी था, आज भी हैंडसम हूँ। अपने आप को मिरर के अंदर वैसे ही अपनी शक्ल को देखना शुरू करो। विजुलाइज करो कि हाँ मेरी शक्ल वैसी है, अभी भी वैसी है, कोई कुछ नहीं है मेरा फेस तो, अरे वाह क्या स्किन वैसे की वैसी टाइट चल रही है, कितना बढ़िया। अपने आप को वैसे ही कर लो, करके तो देखो, होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा।
प्रेम प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखिए जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। आ गई ना यही बात, ऐसी फिल्में देखने, तो मैं यही कह रहा हूँ, देखना शुरू करो टीवी के अंदर में वो वाले सीरियल, वो वाली चीजें हंसने। कल भी मैंने बोला था लाफ्टर शेफ, जो हंसी मजाक वाला, कपिल शर्मा शो, ऐसे देखने शुरू करो जिसमें वो आपको देख के हंसने के लिए मजबूर हो जाओ। आप अंदर से फील करो हंसी आ रही है। ये दुख दर्द वाले और रोने धोने वाले और ये सारी चीजें, ये सीरियल जो आते हैं ना सास बहू वाले, और जिसके अंदर में बस सिर्फ यही चीजें आलतू फालतू की, जो कहीं ना, उनके अंदर में हर सीरियल के अंदर कोई ना कोई दुख तकलीफ चलती रहती है। कभी वो इसमें फंसेगी, कभी वो उसमें फंसेगी प्रॉब्लम के अंदर, कभी तीसरी प्रॉब्लम में फंसेगी, कभी चौथी में फंसेगी, एक से निकलेगी दूसरी में प्रॉब्लम में, दूसरे निकलेगी तीसरी में। और हम बड़ा वो देखते हैं और बड़ा उसके साथ में इमोशनली अटैच होके, अरे भाई देखो कितनी बेचारी है ये, आज इसके अंदर ये मुसीबत आ रही है, आज देखो बेचारी इस मुसीबत में फंसी पड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, हम आकर्षण का नियम समझ ही नहीं पा रहे, हम तो सीरियल के अंदर देख रहे हैं और धीरे धीरे वो सरकमस्टांसेस हम अपने पास में क्रिएट करते हैं। फिर कहते हैं कि यार मेरा रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है घर के अंदर में, मेरे रिलेशनशिप में ये इशू आ रहा है, मेरी हेल्थ में ये इशू आ रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि वहां पर जो सीरियल के अंदर है ना, वो लड़ती ही रहती है, कभी किसी के साथ लड़ रही है, कभी कैसे लड़ रही है। वो कभी उसको उसका पति धोखा दे रहा है, कभी उसको कोई दूसरा उसका परिवार का धोखा दे रहा है, तो उसके लिए तो धोखे चलते जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सारे धोखे जो ये चल रहे हैं ना, वो मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे साथ कर रहे हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये पता नहीं ऐसा क्यों सब मुझे धोखा क्यों देते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करना क्यों बंद कर चुके हैं, सब मेरे से प्रेम करना क्यों बंद कर चुके हैं। अरे भैया वो सीरियल जो तुम्हारा चल रहा है सास बहू वाला या कोई ऐसा सीरियल चल रहा है, तो सब वहां पे जो हो रहा है वो अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे लाए जा रहे हो आप। आकर्षण के नियम वही घुसा रहा है आपको अपनी तरफ में, तो उसको काटो, उन चीजों को कट करो, अपनी लाइफ से दूर करो। आप जान ही नहीं रहे हो कि आप इन सीरियलों में फंस के आप अपनी लाइफ के अंदर उन सीरियलों को लेके आ रहे हो, वो सारे डिस्कम्फर्ट आप खींचते चले ला रहे हो। आपको अच्छी क्यों लग रही है वो वहां पे, वो बेचारी आपको अच्छी क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर में डेली कोई ना कोई इश्यू आ रहा है और आपको इसलिए वो अच्छी लग रही है। और जब वो अच्छी लग रही है तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसके जो वो अच्छाई के गुण है ना, लड़ने वाले और ये सॉरी बेचारियों वाले गुण, जो इसको दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं, हर तरफ से दुख में फंसी हुई है वो, तो आप अपनी तरफ खींच के ला रहे हो। अब क्या होगा, अब वो दुखी है, चारों तरफ से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप दुखी क्यों हो? आप भी इसीलिए दुखी हो ना, क्योंकि आपने तो पसंद कर लिया वो सीरियल के अंदर तुलसी या आराधना, ये जो भी है मुझे नहीं मालूम।